بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على رسوله العربي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي البطحي النبي المسدد الرسول الممجد المصطفى الأحمد بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين ولعنة الله على دائمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. آیت کو پہلے ہی دن سے پڑھتا چلا رہا ہوں. مفہوم اس کا معاملہ کے لفظوں میں ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے ان لوگوں کو پناہ دی، ان لوگوں نے جن لوگوں نے ان لوگوں کو پناہ دی وہی لوگ سچے مومن ہیں. کلمہ پڑھنے کی بات کرتا ہی نہیں، یعنی اللہ کلمہ پڑھنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج زیارت کی بات کرتا ہی نہیں. کہتا کہ صرف جن لوگوں نے مستحقین پناہ کو پناہ دی، جن پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اسلام کی بنا پر، ایسے مسلمانوں کو جن لوگوں نے پناہ دے دی وہ سچے مومن ہیں. تو مسلمان کو پناہ جو دے دے تو وہ سچے مومن ہو جائے، اور بانی اسلام کو جو پناہ دے دے وہ کافر رہ جائے. یہ تاریخ کا نرالا انصاف ہے. غالباً کائنات میں اس سے بہتر کوئی انصاف ہی نہیں ہوا. اس سے بہتر کہ جو مسلمان کو پناہ دے تو وہ تو ہو جائے مومن، مسلمانوں کے جو رسول کو پناہ دے وہ رہ جائے کافر. تو کل میں نے سنایا تھا آپ کو محمد حسن، خلیفہ محمد حسن ریاست پٹیالہ کے رہنے والے، جو اپنے دور میں وزیر اعظم تھے ریاست کے، ان کی کتاب کا حوالہ دیا. آپ کے سامنے ذکر کرتے کرتے پیغمبر کے عقد کے موقع پر جو ابو طالب نے خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے کے دو جملے پڑھے تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. آج کی اس گفتگو میں پہلے ذریۃ ابراہیم کی 10-5 منٹ شرح سنیں. یہ ذریۃ ابراہیم کہہ کے اگر بڑھ جاؤں تو گفتگو تشنہ رہ جائے گی. تو ایسے نہیں، قرآن کو مجھے پھر پڑھنا پڑے گا کہ قرآن میں اکثر و بیشتر آیت حضرت ابراہیم کے تذکرے کی ہے، مگر کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے ابراہیم کا جہاں جہاں ذکر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. کعبہ بنایا ہے تو وہاں بھی ذکر ہے ابراہیم کا، مگر ذریت کے ساتھ. توجہ سنیے گا. شام سے آ کر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو بسایا تو ذریت کا ذکر. آج امامت ملی ہے تو ذریت کا ذکر. بت شکنی کیا ہے تو ذریت کا ذکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ ابراہیم میں، ان کی نظر میں خود ان کی ذریت کا اتنا بلند اور بالا درجہ تھا کہ اپنا تذکرہ کہیں اکیلا پسند ہی نہیں کیا. کعبہ بنا لیا تو کہا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ اللہ، اور جب امامت ملی تو کہا کہ ومن ذریتی، اور جب بتوں کو توڑا ہے تو کہا ہے کہ ربی جل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ پالنے والے مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا. تو ابو طالب کسی بیوقوف انسان کا نام نہیں ہے. زین العابدین کی طرح کی دادا کی عظمتوں کا ذکر یوں ہی کر دیا. جب کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا والوں قیامت تک میرا خطبہ سامنے رکھنا، میرے جد اعلیٰ کی دعا کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، میں ہی وہ ذریۃ ابراہیم ہوں جو بت پرستی سے محفوظ رہا ہوں. نہیں ہوئی. اب آپ غور کیا تو پھر اسے ایک جملے میں ذرا بچے بھی سمجھ لیں، چھوٹے بھی سمجھ لیں کہ پھول کتنے ہی خوبصورت ہو، پھول کتنا ہی خوبصورت ہو، اس کی پنکھڑیوں کو الگ الگ بکھیر دیا جائے تو کوئی سمجھدار اب اس کو پھول نہیں کہہ سکتا. تو ایمان ابو طالب کی جس کتاب کا میں نے ذکر کیا، ایمان کی بکھری ہوئی پنکھڑیاں دنیا اسلام کی کتابوں میں بکھری ہوئی ہے. صرف زین العابدین کے ذہن کا یہ کمال ہے، ان پنکھڑیوں کو چن کر ایک جگہ جمع کر کے ایمان کا پھول بنا دیا. ایمان
ईमान का बोल बनाकर अहले ईमान के गले का हार बना दे और किसी के सर का ताज बना दे। तवज्जो दीजिए, वरना ईमान अबू तालिब मुहताज दलील नहीं है और मुहताज इस्तिदलाल नहीं है। कोई माने या ना माने, ज़ैनुल आबिदीन उसको यूं कहता है कि सारी दुनिया जब अल्लाह की मुनकिर हो गई थी तो अल्लाह की वलूहियत में एक बाल के बराबर कमी नहीं आई, और जब सारी दुनिया से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद है तो अल्लाह की रुबूबियत में एक बाल के बराबर इजाफा नहीं हुआ। इसी लफ्ज को बदल दीजिए, जब अरब की सरजमीन पर कोई पैगंबर को रसूलुल्लाह कहने वाला नहीं था तब भी वो रसूलुल्लाह थे, जब सारी दुनिया रसूलुल्लाह कहने लगे तब भी रसूलुल्लाह है। उनके कहने से रिसालत में कमी नहीं आई थी, इनके कह देने से रिसालत में इजाफा नहीं हुआ। फिर गौर कीजिए अज़ीज़ाने गिरामी, यही जुमला बदल के मौलाए कायनात के लिए कहूँ, क्या कहूँ कि सारी दुनिया अली वलीउल्लाह कहे तब भी अली की विलायत में इजाफा नहीं होता, सारी दुनिया इनकार कर दे तो कोई कमी नहीं होती। फिर लफ्ज को बदल देता हूँ, अबरहा लश्कर लेकर आया काबा ढाने के लिए, तो काबा ढा भी देता तो काबा के एहतराम में कमी नहीं आती, और काबा बच गया तो उसके एहतराम में इजाफा नहीं हुआ। नहीं तवज्जो दी आज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह की नजर में जो उसका इसका एक माना यह है, ज़ैनुल आबिदीन समझाता है कि खुदा जो बनाता है या जो अपने हुक्म से बनवाता है, कोई उसको माने या न माने तो अपनी जगह पर मुसल्लम चीज रहती है। ना समझे हो तो यूं कहूँ कि अल्लाह का इनकार कर दे तो काफिर कहलाए, इकरार कर ले तो मुवहिद कहलाए। जुमले सुनिएगा, अल्लाह का इकरार कर ले, इनकार करे तो काफिर कहलाए, मुशरिक कहलाए, और इकरार कर ले तो मुवहिद कहलाए। रसूलुल्लाह का इनकार कर दे तो काफिर कहलाए, और इकरार कर ले तो मुसलमान कहलाए। नहीं लुत्फ आया? फिर दोहराता हूँ जुमला, अल्लाह का इनकार करे तो मुशरिक कहलाए, इकरार कर ले तो मुवहिद कहलाए। रसूलुल्लाह का इनकार करे तो काफिर कहलाए, इकरार करे तो मुसलमान कहलाए। अली का इनकार करे तो मुनाफिक कहलाए, और इकरार करे तो मोमिन कहलाए। दर्जे दर्जे बदले हुए लफ्ज को तवज्जो दीजिए। अल्लाह के इकरार करने वाले का नाम मुवहिद है, रसूलुल्लाह के इकरार करने वाले का नाम मुसलमान है, अली की अलायत का इकरार करने वाले का नाम मोमिन है। ये दर्जा बंदी है। यही वजह थी कि इब्तिदाई दौर में रसूल कहते थे कुलू ला इलाहा तुफ्लिहू, नहीं तवज्जो फरमाया। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना निजात के लिए काफी था। 3 साल तक रसूलुल्लाह कहने की जरूरत नहीं थी। जब खुल्लम खुल्ला ऐलान का हुक्म हो गया, अब रसूलुल्लाह बढ़ाया गया, तब 22 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब गदीर में नबी ने कह दिया अली वलीउल्लाह, नहीं समझे आप, मन कुंता मौला, अब वहां से ये शुरू हो जाएगा। इस्लाम एक बैक नहीं आया है, जैसे ज़ैनुल आबिदीन जहाज से उतर के यहाँ आ गया, नहीं पहले इतना छोटा आया था। जाते हुए कहा कि मौजू तो आपने अच्छा छेड़ा है, मगर कुछ तरबियत वालिदैन का भी और तरबियत औलाद और अज़मत वालिदैन, बेशक ये सब मौजू अच्छा है, मगर ईमान अबू तालिब के साथ ही साथ ये मौजू चले तो क्या बुरा है। ईमान अबू तालिब के साथ सुनिए तो ईमान अबू तालिब के साथ एक मसला यही से छिड़ जाता है, और कुरान की आयतों की तरह यह मजमून बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा कि जब तरबियत औलाद की बहस खुद रसूलुल्लाह के सामने किसी ने रखी तो हजरत ने फरमाया कि बाप के ऊपर बेटे का ये हक है। बाप के ऊपर, लोग पढ़ते हैं बेटे के ऊपर बाप का हक, ये बदल गई नहीं भाई, कि बाप के ऊपर बेटे का हक ये है कि पहला काम करे बाप ये अपने बेटे के हक अदा करने में कि उसका अच्छा नाम रखे, अच्छा नाम रखे। फिर दूसरी उस बाप की जिम्मेदारी, यानी बेटे का हक बाप के ऊपर है कि अच्छी परवरिश करे। फिर तीसरी जिम्मेदारी है कि अच्छी तालीम दे। अच्छा, तो ये तो है अज़ीज़ाने गिरामी, सुनिएगा, 3 हक बता दिए, बेटे के, औलाद के, बाप के। जिसका बाप बेटे के पहले पैदा होने से पहले मर गया हो, जिस बेटे का बाप बेटे के पैदा होने से पहले मर
ऐसे अदा करे तो ये अब्दुल्ला की दूररसी थी कि अपनी जगह अपने भाई अबू तालिब को छोड़ गए थे। नहीं समझा जी कि मेरे बेटे का जो हक मुझ पर है मेरे भाई ऐसे अदा कर देना कि दुनिया के सामने नमूना बन जाए। इतना अच्छा मेरे बेटे का नाम रख देना कि जब तक कोई उसको दोहराए ना मुसलमान। जिधर होगा मैं अपने आप ख्याल रखूंगा। तो अब सुनिए, अल्लाह के कितने नाम है कोई बता सकता है बच्चा? अल्लाह के 99 नाम है, उसमें एक नाम इसमें जात है, बाकी इसमें सिफात। अभी इस्तिलाह कौन सुनाए, किसको बताए? कौन? 99 नाम में एक नाम अल्लाह जो है इसमें जात है और बाकी रहमान रहीम वगैरह जो है ये इसमें सिफात है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम इसमें जात है, बाकी ये मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन, अहमद जो कुछ है ये इसमें सिफात है। और कितना फर्क है सुनिएगा, क्या कितना फर्क है। ईसा उलुल अज़्म पैगंबर, साहिब किताब, साहिब तौरात, साहिब इंजील, साहिब शरीयत, मसीहा इब्ने मरियम, जिंदा। लफ्ज़ पर तवज्जो दीजिए, शक किसी को हो तो जाके पूछ ले। आप कहेंगे जाके कैसे पूछ रहे, जब दुनिया चाँद को पहुंच चुकी है, अब मरीख पर जल्द ही पहुंच जाएगी तो चौथे आसमान पर भी जाके ईसा से पूछ लेंगे कि आपने अपने दौर में कहा था ना कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बशारत दे रहा हूँ, एक नबी आएंगे जिसका इसमें गिरामी, एक रसूल आएंगे जिनका इसमें गिरामी अहमद है। जब वो रसूल आ गए दुनिया में, सुनिएगा जुमले छोड़ दिया बहुत सी बात है, जब वो रसूल आ गए तो किसी ने नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। किसी ने नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। और ना आज कोई कहता ज़ैनुल आबिदीन सारी दुनिया के मुफ्तियों की तरफ से फतवा देता है कि अगर कोई इंसान कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह फौरन काफिर मान लिया जाएगा। अच्छा ना काफिर मान लिया? हाँ, सारी दुनिया के मुत्तफिक है मुफ्ती, क्यों काफिर माने? एक नबी रसूल पैगंबर ने बताया, एक पालने वाले, ये क्या मतलब हुआ? एक नबी जो नाम बता जाए, एक रसूल कि अहमद नाम है, उसको हम कलमा में दोहराएं तो काफिर हो जाए, और एक काफिर जो नाम रख जाए कुरान की आयत शाहिद है, जिसका दिल चाहे पढ़ ले कुरान का। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूँ एक आने वाले रसूल की जो रसूल बन के आ रहे हैं। ये भी माना है इसमें, रसूल बनकर आ रहे हैं, बनाए जाएंगे नहीं। आ रहे हैं, रास्ते में हैं, मैं तुम यहाँ इंतजार करो, मैं चौथे आसमान को इंतजार करूँ। वो आ रहे हैं। अच्छा तो हो गई, बात मुकम्मल नहीं हो गई। मैंने कहा पालने वाले ये कौन सा मजाक है? तेरा रसूल, तेरे पैगंबर, तेरे फरिश्ता मसीहा इब्ने मरियम अहमद नाम बताए, मैं कलमा पढ़ूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो तू मुझे काफिर करार दे दे। और काफिर जो नाम बता के जाए, रख के जाए मोहम्मद यानी अब्दुल मुत्तलिब या अबू तालिब, उनका नाम दोहराता रहो तो मुसलमान हो जाओ। कहा है इसमें राज ये है कि ईसा के ईमान और कुफ्र की बहस कोई करने वाला नहीं। ईसा को ईमान और कुफ्र की कोई बहस करने वाला नहीं। मेरे ये दोनों बंदे ऐसे हैं कि इनके ईमान और कुफ्र की मेरे ही इकरार करने वाले बहस करेंगे। इसलिए मैंने जुज़्वे कलमा लफ्ज़ मोहम्मद को रखा है कि जब कोई मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब की रूह पुकारे कि ये नाम तुमने रखा या हमने रखा, हम रख दे और तुम दोहरा दो। नहीं समझे? हम रख दे तो हम काफिर रह जाए, तुम दोहराते रहो। अच्छा और आगे सुनिए, अब ये तारीख अरब दोहरा रहा हूँ, यहाँ इसको छोड़कर तारीख अरब के तारीख अरब के मक्का मदीना के हदूद में आप देख ले, जितने बुजुर्ग बाप बन चुके हैं, हर एक के बेटे में आपको अब्दुल शम्स मिलेंगे, अब्दुल दार मिलेंगे, अब्दुल उज्जा मिलेंगे, अब्दुल लात मिलेंगे, अब्दुल उद मिलेंगे। नहीं गौर कर रहे हैं? यानी जिनको उन लोगों ने खुदा माना है, उनके बेटों में निस्बत अब्दुल्लाह की, यानी जो बुद्ध का पुजारी लात का है, उसके घर बेटा पैदा हुआ तो उसने कहा अब्दुल्ला। जो शम्स का पुजारी था उसके बेटा पैदा हुआ, कहा अब्दुल शम्स। जो दार बुद्ध का पुजारी था उसके बेटा पैदा हुआ तो नाम रख दिया उसने अब्दुद्दार। तवज्जो कहता रही हूँ, अल्लाह ने अबू तालिब को भी 4 बेटे दिए। अगर किसी बुद्ध के मानने वाले होते तो 4 बेटों में से किसी का
किसी बेटे का तो नाम रखते अब्दुल उज्जा, किसी बेटे का नाम रखते अब्दुल्दार, अब्दुल शम्स, अब्दुल उज्जा। अल्लाह रे अजमते अबू तालिब के दौरे कुफ्र में 4 बेटे अल्लाह ने उनको दिए, तो ऐसे प्यारे प्यारे नाम रखे कि 15वीं सदी चल रही, 14वीं नहीं, 15वीं सदी अबू तालिब के एतबार से, 15वीं सदी और पूरी होने को है। वो इतना प्यारा नाम रखा कि कलमा पढ़ के 1400 साल से आज लोग अकील, अली, जाफर तारीख नहीं, मुआशरे में मोहम्मद तालिब भी मिल जाएंगे, तालिब हुसैन भी मिल जाएंगे, तालिब अहमद भी मिल जाएंगे, और जाफर भी मिल जाएंगे, अकील भी मिल जाएंगे, मगर अब दुनिया इस्लाम में कहीं अब्दुल्दार, अब्दुल शम्स नहीं मिलेंगे। मालूम है काफिरों के रखे हुए नाम मिटा दिए गए हैं, ईमान के रखे हुए बचा लिए। एक दलील ये भी नहीं और क्या कह गए हैं, बाप के ऊपर बेटे का हक है, बात सामने की नहीं है। तालिब पहले बेटे का नाम, अकील दूसरे बेटे का नाम, जाफर तीसरे बेटे का नाम, और आखिरी बेटे का अली नाम। इतना प्यारा कि जहाँ देखो अली, जहाँ देखो अली, अर्श पर अली, फर्श पर अली, रस्म में अली, बज़्म में अली, दूर में अली, दूर पर अली, नहीं समझे, मैदान में अली, तन्हाई में अली, मस्जिद में अली, काबा में अली, मिंबर पर अली, गोद में अली, दोस्त पर अली, बिस्तर पर अली, लश्कर पर अली, नहीं समझे क्या कहते, लश्कर में अली, बिस्तर पर अली, दोस्त पर अली, यहाँ अली, यहाँ अली, वहाँ अली, यहाँ इधर चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए अबू तालिब काफिर थे, मुझको भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मेरे दादा, मेरे परदादा काफिर थे। काफिर दौर में उन्होंने अपने एक बेटे का नाम रखा कालिदास, रामचरण। काफिर थे, काफिर दौर में उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा रामचरण, कालिदास, भगवान दास, इस तरह मान लीजिए। अब जब हमने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर कुछ आगे बढ़े तो शिया मजहब इख्तियार कर लिया, कुछ पढ़ लिख के ज़ैनुल आबिदीन मौलवी बन के यहाँ तक आ गया, आप भी हो गया शादीशुदा। अल्लाह ने सबकी तरह मुझे भी बेटा दे दिया। बाबा की बात याद आ गई, नहीं बड़े वाले दादा की बात याद आ गई कि उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा था, रामचरण कालिदास। मैंने कहा बहुत अच्छा नाम था, मैं भी रखा। अब जैसे ही रखा पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो गई, लो ये काफिर है कि शिया, ये तो काफिराना नाम रखते हैं, नहीं लो ये तो काफिराना नाम रखते हैं। इनके बुजुर्गों में किसी का नाम रहा रामचरण, तो इन्होंने अपने बेटे का नाम रामचरण रख दिया। मालूम होता है दिल से अभी काफिर है, नहीं समझे दीदाने गिरामी। कहने का मेरे मतलब यह है कि दुनिया इमाम माने, छठे इमाम को माने, इमाम या न माने, मगर सादिक तो मानेगी। नहीं समझे दीदाने गिरामी, छठे हमारे इमाम को दुनिया इमाम माने या न माने, मगर सादिक तो मानेगी। जब सादिक मान लेगी तो नाम देखेगी तो जाफर, मोहम्मद बाकर आवाज देंगे। मैंने अपने दादा अबू तालिब के रखे हुए नाम को इसलिए दोहराया कि दादा का रखा हुआ इतना पाकीज़ा नाम था कि इसमत में भी, मासूमों की फहरिस्त में भी ये नाम। करेंगे, मेरा जिम्मेदारी, मैंने बहुत बचा के अपनी बात को छेड़ा, माफ कीजिएगा, बहुत बचा के, वरना इतनी देर में तो मैं 10 किताबों का नाम बताता। और मेरा चैलेंज है दुनिया के हर हिस्से में कि मेरे दिए हुए हवाले को अगर कोई भी इंसान गलत साबित कर दे, जहाँ चाहे मेरे ऊपर गोली मार दे, मेरे बच्चे कोई दावा नहीं करेंगे। क्या हवाला गलत हो ही नहीं सकता। आप सुने, मोहम्मदी प्रेस लाहौर सन 1303 हिजरी की छपी हुई किताब, उसका नाम है अस्सबुल जलिया। और फिर लाहौर ही की छपी हुई किताब दरासातुल लबीब, ठट लाहौर में कस्बा है, अब जिला शायद हो चुका है, वहाँ के रहने वाले मुल्ला मुईन इब्ने मुल्ला अमीन, उनकी लिखी हुई किताब दरासातुल लबीब फी खसाइसिल हबीब। अब उसका उर्दू तर्जमा भी सिंधी अदबी बोर्ड लाहौर ने शाया कर दिया है, उर्दू बाजार लाहौर से। मैं अरबी नुस्खे से अरबी का मुताला करके सुना रहा हूँ कि वो अपनी
किताब दरासातुल लबीब में मुल्ला मोइन लिखते हैं कि इत्तेफाका अहलुल बैत इन्ना अबा तालिब माता मोमिनन, कि अहले बैत का इत्तेफाक है, अहले बैत का इत्तेफाक है कि अबू तालिब दुनिया से मोमिन गए। तवज्जो का तर जाहिल, अगर जाहिल और गुनाहगार किसी बात पर इत्तेफाक कर ले तो हक हो जाए। जाहिल गुनाहगार किसी बात पर इत्तेफाक कर ले तो वो हक हो जाए, खिलाफत बन जाए। अब मासूम अहले बैत ईमान अबू तालिब पर इत्तेफाक कर ले। ये ऐसा लुकमा है कि मुसलमान के गले से उतरता नहीं, तो उस लुकमे की खराबी नहीं, क्या कीजिएगा। निफाक का कांटा यहाँ इतना अच्छा अटका है। भाई तो बात याद रहेगी, फिर दोहरा दो नाम दोहरा दो। दरासातुल लबीब किताब का नाम है क्या? दरासातुल लबीब फी खसाइसिल हबीब। लिखने वाले का नाम है मुल्ला मोइन, उनके बाप का नाम है मुल्ला अमीन, ठट के रहने वाले, लाहौर से किताब छपी। अस्सबरुल जलिया फी आबाइल अलिया, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की लिखी हुई किताब मोहम्मदी प्रेस, लाहौर से सन 1303 हिजरी में छपी। अल्लाह का शुक्र है कि उसका मतबूआ नुस्खा भी मेरी लाइब्रेरी में है और उसका कलमी नुस्खा भी मेरी लाइब्रेरी में है। उसके मुताले से मैं सुनाता हूँ। अब सुनिए क्या सुनाता हूँ कि कुरान में एक जगह अल्लाह कहता है कि वतकल्लुबक फिस साजिदीन, ए पैगंबर हमने आपको सजदा गुजारों में मुंतकिल किया, सजदा गुजारों में मुंतकिल किया। तो अब अल्लाह जिनको सजदा गुजार कहे, इसका मतलब खुला हुआ है कि वो बुतों के सजदा करने वाले नहीं थे। नहीं ना, अपना सजदा गुजार वो मान के कह रहा है कि मैंने आपके नूर को सजदा गुजारों में। और अली के लिए नबी कहते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी अना वालिउन मिन नूरिन वाहिद। तो जिन सजदा गुजारों में अल्लाह ने नबी के नूर को मुंतकिल किया, तो अभी वो नूर एक ही तो था जो मुंतकिल होता हुआ आया। तवज्जो सुनिएगा। अब तो आगे सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब से तो बटा है, एक हिस्सा अब्दुल्लाह के सुल्ब में, एक हिस्सा अबू तालिब के हिस्से में। अब कोई दुनिया का समझदार मुझे बताए वो लम्हा कि जब अल्लाह ने एक नूर के 2 टुकड़े किए तो अल्लाह से तौबा तौबा ये खता कैसी हुई कि नूर के 2 टुकड़े बनाकर एक को तो रख दिया मोमिन के सुल्ब में और एक को रख दिया काफिर के सुल्ब में। मानिएगा ये अबू तालिब पर अब इल्जाम लगाने का जानते हैं क्या सजा बनती है? ये सजा बनती की जात इलाही पर हर बार। मैं आपको समझाऊं, ये देखिए मेरे इस सर के बरहनगी पर मत एतराज कीजिएगा। ये टोपी मैंने मुसलमान से खरीदी, पाक, पैसा मेरा पाक, मेरा सर पाक, यहाँ रखा पाक, उतार के यहाँ रख दिया पाक, पढ़ के घर गया बिस्तर पर रख दिया, बीवी ने बिस्तर से उठा के मेज पर रख दिया, मेज पाक। तवज्जो सुनिए, बच्चा आया खूंटी पर रख दिया, खूंटी भी पाक। एक बार दिमाग आया, एक बार दिमाग आया कहीं का मेरे घर में दाखिल हो गया, जबरदस्ती टोपी ला जाकर नाली में फेंक दिया। सारा मोहल्ला चीख उठा, रे भाई क्या गलती कर रहे हो, ये मौलाना मोहतरम की टोपी है, बड़े एहतियात से रखिए इसको, ये पाक ही पाक रही। तुमने ये क्या गलती की कि नाली में लेकर लाके फेंक दिया? नहीं समझा दीदाने गिरामी। अब नबी की सीरत जानने वाले जानते हैं, मेरी तस्दीक करें। कायनात नहीं पैदा हुई थी, नूरे नबी पैदा हुआ। अल्लाह ने अर्श की बुलंदियों पर रखा, दरियाए नूर में रखा, मेराज की आला मंजिलों में रखा, सिदरा के साए में रखा, तूबा की मंजिलों में रखा, जिब्रील के परों में रखा, मिकाइल के दामन में रखा, हूरों के दामनों में रखा, जन्नत की बहारों में रखा, कौसर की मौजों में रहा, आदम की पेशानी पर रखा, लफ्ज़ पर गौर कीजिए, इब्राहिम के सुल्ब में रखा, नूह की कश्ती में रखा, नहीं समझे, नूह की कश्ती में रखा, इस्माइल की जमीन में रखा, हाशिम के हुस्न में रखा, सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में रखा। अब मैं पूछूंगा, नहीं समझे ये टोपी का मतलब? हर जगह पर एक खुदा तू कादिर तो था, क्या मजबूर हो गया? जिस नूर को कभी अर्श पर रखा, कभी जन्नत में रखा, कभी आदम की पेशानी में, कभी हुरों के दामन में, कभी फरिश्तों के परों में, कभी नबियों के सुल्ब में, कभी कश्ती में, कभी तूर पर, कभी अर्श पर, कभी ज़हूर में, कभी नूर में। अब इतना मजबूर हो गया कि उसके रखने के लिए तुझको कोई पाकीज़ा जगह नहीं मिली, पाकीज़ा जगह नहीं
किताब को नजिस रहल पर नहीं रखता, मुसलमान को तेरी किताब को नजिस रहल पर नहीं रखता। ये तूने क्या किया कि नूर के एक टुकड़े को काफिर के सुल्ब में रख दिया। आवाज कुदरत का है, नादान तू अलीम है कि मैं अलीम हूँ, बेवकूफ तू हकीम है कि मैं हकीम हूँ, मैं आलिमुल गैब व शहादत हूँ कि तू आलिमुल गैब। अब सुन ले, ये काफिर कहते हैं जहन्नम इनके लिए, ये मेरे बंदे अबू तालिब को काफिर कहते जहन्नम इनके लिए। सुन अब मैं तुझे बता देता हूँ, क्या बता, मैं भी मतवज्जा हो गया, क्या पालने वाले क्या कर रहा हूँ, सुना इत्मीनान से। अर्श की आजमत है, अर्श की आजमत है, जन्नत की बहार है, कौसर की रवानी, सलसबील की मौज है, हूरों के दामनों की इस्मत, फरिश्तों के परों की मासूमियत, आदम के इल्म की जलवागरी, यूसुफ के हुस्न की बरतरी, याकूब की दुआओं का सिला, इब्राहिम की अर्जदाश्तों का हासिल, इस्माइल की मेहनतों की कीमत, और क्या सारे नबियों की दुआओं का हासिल। जितने भी मेरी कुदरत के बनाए हुए अच्छे अच्छे पाको पाकीज़ा आसार थे, जब सबके एक एक जुज़ को मैंने हासिल कर लिया, एक पैकर बनाया, उसी पैकर का नाम मैंने अबू तालिब रखा। उस पैकर का नाम मैंने अबू तालिब रखा। तब मैंने, अब तुम एक जुज़ की बात करते हो, मैंने अब्दुल्लाह को इसीलिए उठा लिया था अपने रसूल के पैदा करने से पहले कि एक ही नूर अबू तालिब की गोद में न रहे, एक टुकड़ा, दोनों रहे, दोनों रहे टुकड़ा। इधर रहमत कुल, इधर ईमान कुल, लफ्ज़ सुनिएगा, इधर रहमत कुल, इधर ईमान कुल, इधर रसूलुल्लाह, इधर वलीउल्लाह, इधर हबीबुल्लाह, इधर नफ्सुल्लाह, इधर कुरान लाने वाला, इधर कुरान सुनाने वाला, इधर तलवार मंगाने वाला, इधर तलवार चलाने वाला, इधर काबा को किबला बनाने वाला, इधर काबा को दस्तरखाना बनाने वाला। अब तुम्हारे बस में अज़ाब के फरिश्ते हो तो बुला लो, अगर तुम्हारे इख्तियार में अज़ाब के फरिश्ते हो तो बुला लो, और एक दो को नहीं हजारों से कहो अबू तालिब को पकड़ के जहन्नम में फेंक दे। अज़ाब के फरिश्ते रहमत कुल को देख कर वहां ठहरेंगे, ईमान कुल को देख के। चलते चलते कुछ सन्नाटे को द्वारा और दूर कर दो, एक शरीफाना जुमले से। क्या बात, क्या बात, सन्नाटे को भी दूर कर दो। इतने खलीफा, इतने, हाँ नहीं बुरा लफ्ज़ है, बेहतरीन एहतराम के साथ जिंदगी करार, खिलाफत राशिदा इतने में महदूद है, नहीं खिलाफत राशिदा इतने में महदूद है। चार में चार खलीफा राशिद, यानी नेकोकार, बेहतरीन, सबसे अच्छे। पहले का नाम आप मुझसे अच्छा जानते हैं, और दूसरे का नाम उससे बेहतर जानते हैं, और तीसरे का नाम और सखावत के साथ, हया के साथ, और चौथे का नाम तो नाकामी से जानते हैं। समझे, इशारा मुकम्मल हो गया। नाकामी के इनकी जिंदगी फेल रही, नाकाम है। अच्छा वो बहस है, कहना क्या चाह रही हमारे अबू तालिब में मौजूद है, चार है। खुदा बेहतर जानता, जब चार खलीफा मैंने बनाया अपने मर्जी से, तो बनाने को तो बना लिया और चारों को दर्जा तरतीब दे दिया, मगर जब मैं आंखें मतलब सोते सोते खुली तो मेरी नजर आगे बढ़ी, बना लिया तो मैंने इनको खलीफा चार को, मगर जब आगे जरा सा कदम बढ़ के देखा, चार के बाप वहाँ खड़े थे, चार खड़े थे, तो उन चारों में तीन के बाप तो काफिर थे। अरे वाह, उससे कोई बात नहीं, घबरा के मैंने इस चौथे के बाप को भी उसी में मिला लिया। नहीं समझे? इसका गुनाहगार है कि तीन बनाए, चौथे को मैं मान लिया खलीफा, और देखा ये अहफा, ये गद्दा, ये अफवाह, भूल के भी कभी जिंदगी में इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, और कलमा पढ़ना तो दरकिनार, मुसलमान कोई एक बच्चा जिनकी गोद में कभी एक मिनट के लिए भी नहीं खेला।
के लिए भी कभी खेला नहीं। अब जब चौथे के बाप को देखा तो इनकी गोद में नबूवत और इलाज दोनों में चल रही थी। नबूवत और इलाज दोनों में चल रही थी और रिसालत और खिलाफत दोनों करवटें ले रही थी। यानी लफ्ज बदल दूं कि रसूलुल्लाह और वलीउल्लाह दोनों बारी बारी उसी गोद में मुस्कुरा रहे थे। जैसे मुसलमान की रेहल पर कुरान रखा जाए, अबू तालिब की रेहल पर रिसालत और इमामत। मैंने कहा कि अरे जल्दी करो जल्दी, जहाँ मेरा खजाना था बस मैंने हुक्म दिया सिक्योरिटी को खजाने का मुंह खोलो, झूठे रावियों को पैदा करो, झूठे रावियों का पैदा करो, इनाम इकराम इनको दो। इनके लिए रवायत गढ़े की काफिर थे, वरना मामला एकदम बिल्कुल खराब हो जाएगा कि हमने इनको अफजल माना ये अफजल हो जाएगा। हमने इनको अफजल माना ये अफजल हो जाएंगे। जब जमाना ये देखेगा कि ये बाबा काफिर मोमिन तो क्या पलट गई ना, जल्दी मिलाओ इसी में, ये भी कलमा नहीं पढ़ा। तो मुस्कुरा के अबू तालिब अपने शेफ से निकले। नहीं समझे, शेफ का तर्जुमा कुछ लोग कुछ करे, शेफ का तर्जुमा हिंदुस्तानी जबान में कहता है सराय। दिल्ली के लफ्जों में सफीर साहब हवेली, अपनी हवेली से निकले आए। जुमला है हंसाने के लिए नहीं कहता। अबू तालिब की हवेली ही का नाम शेब अबी तालिब है, जहाँ रसूलुल्लाह नहीं समझे क्या कह गया। अबू तालिब इतने मुहताज थे कि गैर की जमीन पर रखकर भी अबू तालिब ने अपने भतीजे की परवरिश को पसंद नहीं किया और परेशानी में भी दूसरे की जमीन पर कदम नहीं रखा। और अब कहता है दुनिया अरब से कि बुजुर्गों को चैलेंज करके ज़ैनुल आबिदीन कि तुम में तो इतनी भी सलाहियत नहीं थी कि अपने घर में अपना चिराग जलाते, अपने घर में अपना चिराग जलाते। तुमने मिट्टी का चिराग किसी से मांगा, तेल किसी से लिया, बत्ती किसी से ली, तो अपने घर में भी न जला। अबू तालिब का कमाल है ये कि अपना तो अपना घर, अल्लाह के घर में चिराग जला दिया। अल्लाह के घर में चिराग जलाया। और ये उर्दू जबान के लफ्ज है, उर्दू जबान के दो लफ्ज है, सेहदरा बारादरी। नहीं समझा दीदाने के राम। अब ये तो उर्दू जबान के दो लफ्ज सेहदरा और बारादरी। ज़ैनुल आबिदीन इसको बदल के यूं कहता कि निफाक के सहदरे से निकलिए, निफाक के सहदरे से निकलिए, ईमान की बारादरी पर आइए। हर दर पर अबू तालिब के ईमान का चिराग, हर दरवाजे पर अबू तालिब के ईमान का चिराग रोशन नजर आएगा। पहले दरवाजे पर ईमान चिराग बुलंदी का, दूसरे दरवाजे पर ईमान के हुस्न का, तीसरे दरवाजे पर सब्र का, चौथे पर इबादत का, पांचवें पर इल्म का, छठे पर तुमने भी कोई ऐसी बारादरी बनाई। सुने आगे बोलूं, अभी छोड़ के इधर कभी एक इधर, कभी मगरिब में जाता हूँ, कभी मशरिक में, कभी शेमाल में, कभी जुनूब में, तो याद आ जाती है जैसे बात वैसे ये गुनहगार बोल देता है। अब कल मैंने अलहम्द की बात कही थी ना, तो अलहम्द पहले पढ़ता है आदमी की नीयत करता है। वाह जी, और नीयत भी पहले करता है कि उससे पहले भी कोई जिम्मेदारी है। एक सवाल कर दिया नमाजियों से, नीयत करने से पहले कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? क्या जिम्मेदारी है जी? जिम्मेदारी ये है कि वजू करे, वो एक अलग बात है। जिम्मेदारी है कुर्बतन नहीं, किबला रू, यानी उत्तर मुख करके नियत भी नहीं होगी, नियत करेगा भी तो नहीं होगी। पश्चिम मुख कर, जब पूरब रुख करे और कहे नमाज पढ़ता हूँ 2 रकात सुबह की कुर्बतन नहीं, नमाज सही होगी। नियत करते वक्त किबला रू होना और क़याम जरूरी है, तवज्जो कहता नहीं हूँ। तो अब जब मैं नमाज पढ़ने, मैं काफिर कहता रहा, मगर जब नमाज पढ़ने खड़ा हुआ तो अब वो उसूल इस्लाम, कानून इस्लाम, शरीयत के मुताबिक मुझे किबला रू होना पड़ा। तब कुर्बतन इल्लाह कहने के आमादा हुआ। तो जैसे कि कुर्बतन इल्लाह नमाज पढ़ता हूँ, ऐसा की 4 रकात वाजिब कुर्बतन इल्लाह, किबला रू तो हो ही चुका। अबू तालिब आ गए, कहो बेटा क्या हाल है?
कहा नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तो चुप रहो, बोलो मत, नमाज बातिल हो जाएगी। मुझे पहले बता दो मैं मोमिन हूँ कि काफिर। मैंने कहा कि काफिर। कहा तो अपनी नमाज की खबर लो। अरे जिस घर में काफिर का बेटा पैदा हुआ उसे किबला बनाए हो जी। जिस घर में काफिर का बेटा पैदा हुआ उसे तुम किबला बना के कहते हो कुर्बतन अल्लाह, पहले पाक करो उसको, फिर वहां से मेरे बच्चे की पैदाइश की जो माज़अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह कोई नजासत रह गई हो तो साफ सुथरा करो। सुनो तुम्हारे जमाने में 1300 बरस गुजर गया, 1400 बरस गुजर गया, मेरे बेटे को पैदा हुए और 1400 बरस में 14,000 मुफ्ती इस्लाम में पैदा हुए दुनिया इस्लाम में। आज तक किसी ने काबा के पाक करने का हुक्म नहीं दिया। इसका मतलब ये कि मैं और मेरी बीवी इतने पाक हैं, इतने पाक है कि जहाँ मेरा बच्चा पैदा हो जाए तुम मुसलमानों का वो किबला बनता है। आज तो आप ये बात सुनिए, समाज है समाज, यहाँ नहीं जानता, मैं तो नया नया मेहमान हूँ, मगर एक समाज चला रहा है सदियों से कि बेवा को जरा नीची नजर से देखा जाता। नहीं भाई, कि कोई औरत बेवा हो जाए तो उसे बड़ी नजर नीची नजर से, खुसूसन औरत है, बता दें क्या क्या उसके लिए ना। अब बेचारे उस औरत का क्या कसूर है जो बेवा हो गया, बता सकते उसका कोई कसूर है जी? उसका कोई कसूर नहीं, वो कजा कदर इलाही से उसका शौहर मर गया, अब उसका क्या कसूर है? मगर ये समाज की गंदगी है कि उसे बड़ी नीची नजर से। कहाँ ले गया आपके ध्यान को? जिस समाज में बेवा की कदर कीमत न हो वो सबसे ऊंचा समाज था अरब का, मगर उसी समाज में निहायत ही कम उम्री में आमिना बिनते वहाब बेवा हो गई, और ऐसे हालत में बेवा हुई जब उनको खुदावंदे आलम एक दौलत बेबहा से माला माल करने वाला था। समाज इतना बिगड़ा हुआ था कि बेवा के लिए घर में रहने की इजाजत नहीं थी। तवज्जो का तालिब हो, या वो सस्ती होके मर जाती अपने शौहर ही के साथ, या किसी दुनिया के ऐसे इलाके में चली जाती जहाँ कोई उसका जानने वाला नहीं। ऐसे बिगड़े हुए समाज में अबू तालिब ने अपने मरहूम भाई की बेवा से कहा कि कोई रहने को तुम्हें घर दे या न दे। नहीं समझे ये मेरा घर, आप तारीख पढ़िए, तारीख जिसका दिल चाहे क्या पैगंबर की विलादत काबा में नहीं हुई, अब्दुल्ला के घर नहीं हुई, अब्दुल मुत्तलिब के घर में नहीं हुई, हाशिम की हवेली में नहीं हुई, अबू तालिब के घर में हुई, या सिर्फ पैदाइश ही नहीं। अब अल्लामा इमाम अहमद इब्न हम्बल अपनी किताब मुसरद बाब मनाकिब में लिखा है कि रसूलुल्लाह जहाँ पैदा हुए उस जगह की ज़ियारत करना सुन्नत और मुस्तहब है। अल्लामा बुरहानुद्दीन शाफी लिखते हैं अपनी किताब सीरत हलविया जिल्द 2 मतबूआ मिस्र सफा 251 पर, क्या लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की शबे विलादत में सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि आसमान के सितारे और फरिश्ते आ रहे हैं, और जहाँ पैगंबर पैदा होने वाले थे उसका रात भर तवाफ करते रहे। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी मुसलमान के घर का तवाफ किसी मलक ने किया हो, ये काफिर का घर के बुलंद आवाज से सहारा दे। कौन सितारे और फरिश्ते आते रहे, तवाफ करते रहे, जाते रहे। मालूम हुआ कि अबू तालिब का घर इतना पाको पाकीज़ा है, इंसान जाए या न जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की तरह अभी तो पलट रहा है काफिला हज का, हाजी लोग आ रहे हैं ना। वाह वाह वाह, चलो इंडिया चलो, जल्द को पागल पहुंचो। हज किया, ये हज अकबर कहानियों को ये देखा और वो देखा, अब फरिश्ते जाकर वहाँ नाच करें। अल्लाह का घर भी सामने था, मगर हम अबू तालिब का घर घूम के चले। किसी मलक ने नहीं कहा कि मुशरिक हो गए, और फरिश्तों से किसी मलक ने नहीं कहा कि मुशरिक। काबा को छोड़ के अबू तालिब का घर का तवाफ करके चले। कहा नारायण यही घर न होता न काबा बसता ही। बोल रहा हूँ ये भी आ गई बात ना, हो गई। अब मेरे अगर किसी को एतबार न हो, कहे किताब का नाम बताओ। किताब का नाम है मौलूद, अरबी जबान में लिखी गई किताब, उसका नाम है मौलूद।
अल्लामा बरदंजी की लिखी हुई। उसका पहला नुस्खा मिस्र का मेरी लाइब्रेरी में, दूसरा नुस्खा लाहौर का छपा मेरी लाइब्रेरी में, तीसरा नुस्खा तर्जमा उर्दू के साथ छपा हुआ लखनऊ का मेरे पास। उससे सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ दीदाने गिरामी कि दुनिया में जितने आलिम थे तौरेत और ज़बूर और इंजील के, और खानकाहों में, खानकाह से मुराद पहाड़ के गारों में, दरियाओं के साहिलों में, जंगलों में रहने वाले, रात का इल्म जिनके पास था, उन सब ने अपनी अपनी किताबों में, पोथियों में देखा था कि आखिरी जमाने का नबी पैदा होने वाला है, और आखिरी दिन देख लिया कि अब हो गया पैदा, तो अपनी अपनी जगह से सब चले और मक्का में पहुंचे पूछते हुए कि कोई बच्चा यहाँ पैदा हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सब बताते गए हमारे घर नहीं, हमारे घर नहीं, हमारे घर नहीं। अरे भाई किसके घर? कहा? अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब के घर। तो ये जानने वाले वहां पहुंचे, कहा अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब के दरवाजे पर। कहा कोई बेटा पैदा हुआ है? कहा हाँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि पोता, अबू तालिब ने कहा कि भतीजा, और दोनों बाप बेटे अपनी मसरत पर बैठे हैं, और ये उलमा उनके सामने खड़े, दस्तों से अदब जोड़े, क्या नाम रखा? दोनों एक साथ बोले मोहम्मद। अब वो सारे अहले इल्म अपनी अपनी किताब देखकर मुबारकबाद दे के चले गए कि क्यों नाम रखा? कहा इसलिए कि यहाँ वाले यहाँ तारीफ करें, वहाँ वाले वहाँ तारीफ करें। एक किताब के हवाला याद रहेगा, क्या नाम बताया? मौलूद, अल्लामा बरदंजी की लिखी हुई। अगर हवाला गलत, ये सीना बटन खोल देगा। नहीं समझे? बड़ी जिम्मेदारी की बात, ये गुनाहगार बोल रहा है। तो आ गई बात, छोड़िए इस सब बहस को। तो क्या कहा? अब नाम भी रख दिया। अब नाम रख के तो बेवा को निकाल दो अपने घर से। तो बात वहीं से चलाया है ना। अबू तालिब अब तो हो गया काम, निकाल दो घर से। अच्छा नहीं है, तुम्हारी बीवी घबराएगी कि बेवा का साया मेरे ऊपर रोज पड़ रहा है। भेजो इनको जहाँ कभी। दादा बेवा समझ के, भाई की बीवी समझ के मैंने जगह नहीं दी है। ये अल्लाह के आलम के अमीन की अमानतदार आमिना, ये माँ, मैंने अमानत इलाहिया की हिफाजत के लिए रखा। वो जब तुम पर वो किताब भेजेगा तो वो कहेगा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अभी मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, मैंने भतीजा नहीं समझा है, मैंने इसको अल्लाह की अमानत समझा है। अभी नहीं जाने दूंगा, अभी इसका नाम रखूंगा, अकीका करूंगा। नहीं समझे? पढ़िए किताब है, नाम रख दिया, अभी 7वें दिन अकीका करूंगा, और ऐसा निराला अकीका करो कि दुनिया अरब में क्या, दुनिया कायनात में ऐसा निराला अकीका नहीं जिसका दिल चाहे पढ़ ले। पैगंबर का जब अबू तालिब ने अकीका किया है तो 7 दिन तक दावत वलीमा आम थी। नहीं समझे? आम थी, यूं नहीं कि कार्ड भेजा जाए आप आइएगा, नहीं, मुनादी थी दुनिया अरब में, मुनादी थी दुनिया अरब में कि जिसका दिल जब चाहे, हाँ जब चाहे। अब चलते चलते मुसाफिर गुजर रहा, भूख लगी, आके खा ले, वक्त नहीं, जब चाहे देख पर देख बहुत जब कर। फकीर है ये, नहीं समझे? ये फकीर है। भतीजे की इतनी बड़ी कोई वलीमा करता है, वो भी अकीके का। 7 दिन। अच्छा तो खिलाया, खूब खिलाया, खूब परवान चढ़ाया। आप पाल रहे हैं, पाल रहे हैं, तो कुरान पुकारा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मुसलमान बात दाढ़ी बढ़ा के कहता हल जज़ाउल एहसान इल्लल हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान, एहसान का बदला एहसान। अबू तालिब ने कहा चिल्ला चीखते रहो, मुझे काफिर कहते रहो, मैं तुम ठहरो काबा के सहन में। 40 लाख इस साल रिपोर्ट थी। अबू तालिब बोले इसी साल 40 लाख मुसलमान यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारे साथ अल्लाह से गुफ्तगू करता हूँ। उसने आज से 14 साल पहले कहा कि एहसान का बदला एहसान है। अब पूछो, तुम सुनो, मैं पूछता हूँ, ए पालने वाले, जब तू कह रहा है एहसान का बदला एहसान है, तो अब मेरा एहसान तेरे ऊपर ये है कि तेरे रसूल की, तेरे हबीब की माँ को मैंने अपने घर में जगह दी, तेरे रसूल का नाम मैंने रखा, तेरे रसूल के अकीका मैंने किया, उनका परवान मैंने चढ़ाया किया, तरबियत मैंने की, घर मैंने बसाया, कभी गोद में, कभी दोष पर, कभी कांधे पर रख कर दुश्मनों से मैंने बचाया, अपने बिस्तर पर सुला सुला कर, अपने पाकीज़ा रोजी खिला खिला कर इनको परवान चढ़ाया। तू झूठा कहता है कि एहसान का बदला एहसान है। अल्लाह ने आवाज दी, कहा 40 लाख से कहो सुने, कान खोल कर रूई निकाल दे।
तंग नजरी की और निफाक की रुई अपने कान से बाहर कर ले और अब मेरी बात सुने अबू तालिब सुनो बेशक ये तुम्हारा एहसान इसीलिए तो तुम्हारे एहसान को मैंने कबूल किया कि तुमने अपने मेरे रसूल के पैदा होने के लिए अपना घर दिया तो इसका बदला मैंने ये दिया कि तुम्हारे बेटे के पैदा होने के लिए मैंने अपना घर दे दिया तुमने खिलाया तुम्हारी शरीक हयात को 3 दिन तक काबा में मेहमान बना के मैंने जन्नत की नेमतें तूने मेरे रसूल का नाम रखा मैंने तेरे बेटे का नाम अली रखा और तूने मेरे रसूल को पाला मेरे रसूल ने तेरे बेटे को पाला तूने कांधे पर चढ़ाया उन्होंने कांधे पर चढ़ाया तूने गोद में लिया उन्होंने भी गोद में लिया तूने बिस्तर पर सोलाया उन्होंने मैं हज करने गया अल्लाह का एहसान हुआ काबा का तवाफ किया अल्लाह का एहसान हुआ मीना के मैदान में कुर्बानी दी अल्लाह का एहसान हुआ अरे नाम हमारा अखबार में आ गया हाजी ज़ैनुल आबिदीन वाह 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 घर से निकला यूं करता समझ गए ना बक्स पर लिखा हाजी ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर पर लिखा हाजी ज़ैनुल आबिदीन बेगों पर लिखा हाजी ज़ैनुल आबिदीन अब हाजी तो लफ्ज है मगर अंदर जो है वो ईमान को गंवाने नहीं समझे कुछ और है और जहाँ कुछ और पाले पहुंचे इधर मेरा हाथ उधर जाओ भाई जाओ समझ गए ना कहने की जरूरत नहीं है दागदार हो जाएगा हाजी का दामन दागदार हो जाएगा आगे कुछ बोल दूं अबू तालिब का दामन इतना पाक है कि कहीं से कोई मुअर्रिख कोई मुहद्दिस दामन पर दाग न लगा सका तो बस दूर खड़े होकर जब देखा ना इसको कहा चौथे के बाप को कहाँ फेंका जाए कहा लाइन में लगा दो किसी लाइन में लगा दो तो अबू तालिब ने कहा कि लगा दो लाइन में लगने से क्या होता है लाइन में लगने से एक सफेद मोमिन काफिर टिकट लेने के लिए बहुत खड़े रहते हैं मगर ये कोई जरूरी नहीं है कि सरदार साहब भी आ रहे हो मक्का ही तो तवाफ करेंगे लाइन में टिकट ही के तो लगाए हो मुझे जब मुकाबला आगे बढ़ेगा तो रसूलुल्लाह की वो हदीस जो पढ़ी थी वो पूरी अभी नहीं पढ़ी थी कौन के बाप के ऊपर बेटे का हक ये है कि अच्छा नाम रखे अच्छी परवरिश करे अच्छी तालीम दे अब उसके बाद कहते कि और अब बेटे का एक हक ये है कि बेटे के ऊपर बाप का हक है कि जब किसी रास्ते से बाप बेटे गुजर रहे हो तो बेटा अगर आगे हो तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो ठहर जाए बाप के करीब आके आगे बढ़ जाए तो अबू तालिब ने कहा यहाँ तो लाइन में लगाया जब वहाँ मैं पहुँचेंगे तो आप रसूल से पूछना मैंने अच्छा नाम रखा अच्छी परवरिश की अच्छी तालीम दी अब मैं आगे चलेंगे ये तो आप इनसे पूछो कि ये रुकेंगे कि आगे बढ़ जाएंगे अगर ये आगे बढ़ जाए तो इनका अमल इनके कौल के मुताबिक नहीं अब रसूल भी ठहरेंगे किसके लिए अली के लिए नबी के लिए अबू तालिब के लिए दोनों ठहरेंगे इनको तो पकड़ के बैठे हैं ना लोग आप इधर क्यों जा रहे इधर क्यों नहीं जाते समझ गए कि नहीं असहाबुल शमाल असहाबुल मैमना असहाबुल मशअमा समझ गए ना इधर तक जन्नत इधर दोज़ख तो इधर वाले अबू तालिब को यूं पकड़े हुए चलिए इधर इधर क्यों जा रहे पागल बनाते हो उर्दू जबान में इंडिया की उसको पागल बनाते हो अरे जो जहाँ वाला होगा वही ना जाएगा तुम अपने वाले को देखो मैं अपने वाले को देखो बहुत ऊंचा जुमला कहा गया तुम अपने वाले को देखो मैं अपने वाले को देखूं जिधर तुम्हारे वाले हो उधर तुम चले जाओ और जिधर मेरे वाले हैं मैं चला जाता हूँ और जाने की छोड़ो आजाद करो मुझको
क्यों पकड़ के बैठे हो? छोड़ो तुम भी, अब तुम भी अपना हाथ खोल दो, मैं भी खोल देता हूँ। अब अपने अपने को देखो, कौन किसको बुलाता है। तुम्हारा वाला जो है वहाँ तुमको बुला रहा है। नहीं बात पूरी हुई। मेरे वाले जहाँ है समझो, तो कैसर साहब का नाम लोग बुरा नहीं मानिएगा। फर्ज कर ले ये हैदराबाद की आपकी हवेली है। मजलिस भी करे, दावत भी करे, तो कौन आएगा? मैं आऊंगा। जिसको आप बुलाएंगे वो आएगा। क्या बात। अब भी बुलाया अगर आ जाए तो आप और आपके आदमी को हक है कि गेट से बाहर ही नहीं समझे। रसूलुल्लाह, अल्लाह ने जन्नत जरूर बनाई है, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, मगर अपने को आदा जवारे से मुस्तस्ना रखा, मुबर्रा रखा, जन्नत अली के हवाले कर दिया। और रसूल ने ऐलान किया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। इसका मतलब है कि जन्नत हसनैन की जागीर है। अच्छा, तो अब जागीर में मुझे मेरी हवेली मुझे मिल गई। आप मान लीजिए कि अब मेरे ही दादा आए और मैं रोकूं? आपके दादा को तो आने दूं और अपने दादा को रोकूं तो वहां खड़े होकर कहेंगे कि बेटा दिन सुनो, ये मेरा कमाल है। अगर मैं ना होता तो न तुम माँ की तरफ से होते न बाप की तरफ से। नहीं समझे? कहाँ ले गया? ना मैं ना होता तो न तुम माँ की तरफ से होते न बाप की तरफ। मैंने कहा दादा ये क्या बोल रहे? कहा मैं सुनो, ये है मामला कि तुम तो मेरे पोते हो ना, मगर तुम्हारे जो नाना है उनका निकाह भी मैं नहीं पढ़ा था। उनका भी निकाह मैं नहीं पढ़ा था। तो तुम्हारी जो अम्मा है इनकी विलादत हुई। और अब जो मुझे काफिर कहते हैं उनसे कहो कि तुमने कलमा पढ़ पढ़ के 10 निकाह मेरे भतीजे का किया। तुमने निकाह कलमा पढ़ पढ़ के जमजम के पानी से होंठ पाक कर करके तुमने मेरे भतीजे का 10 निकाह किया। किसी से एक बच्चा भी नहीं पैदा हुआ। काफिर हो के एक निकाह पढ़ा तो इन्ना आता है। मेरी है, ज़ोर बयान है, तकरीर की सजावट है, हक़ाइक़ कुरान नहीं है। रसूलुल्लाह के मेरे मुताबिक 14 बीवी। ये 9 की जो कहानी मशहूर है ना, ये तो वफ़ात के वक्त मौजूद थी। बाद वो थी जो मर गई थी, बाद वो थी जिनको तलाक दे दिया था। पढ़िए किताबें, 14 निकाह। तो कम से कम एक निकाह तो काफिर ने पढ़ा। हाँ भाई, एक निकाह ऐलान इस्लाम ऐलान रिसालत से पहले हुआ, वो काफिर ने पढ़ा था। और कम से कम 13 तो 13 को छोड़ दीजिए, एक मर गई, एक का तलाक मान लीजिए, तो 14 में से 2 निकल गए तो 12 बचे। तो मैंने क्या कहा, 10 निकाह पढ़ा किसने? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है, हंसने की क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। आप उनकी दुनिया में यही होता, मैंने कबूल किया, हो गया। कलमा पढ़ के 10 बेटा कबूल किया और बेटी कबूल किया, हाँ कबूल हो गया। तो ये कलमा पढ़े, दमदम के पानी से पाक किया, कुरान की आयतों से धुला और किबला रुकुल बदन अल्लाह का कलमा पढ़ते रहे, एक बच्चा भी नहीं हुआ। 10 औरतों में से किसी से। काफिर की ज़बान कितनी बाबरकत थी, पढ़ने वाले की ज़बान कितनी बाबरकत थी कि जो उसने खुतबा पढ़ा और निकाह पढ़ा और पढ़ के जब फारिग हुआ तो अल्लाह की आवाज आई, इन्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। तो अब 9-10 निकाह पढ़ने वालों के जो निकाह हुए रसूल के और औरतों से, उनमें से किसी की निशानी दुनिया में कहीं नहीं। और काफिर ने जो निकाह पढ़ दिया, दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं से कोई न कोई। तो इनके ईमान लफ्जों में है, अबू तालिब का ईमान पैकरों में। फिर सुनाएंगे, वक्त इतना ही महदूद है और मसलसल शान हैदर करार। ये मजलिस जानते हैं कितना मैंने सुनाया आपको, कम से कम 20 बरस आदमी मुताला करेगा तो ये मालूम है।
नहीं 20 बरस मुसलसल पढ़ेगा तो जितने ये मैंने कहा कि पंखड़ी के बिखरी हुई पंखड़ियों को चुन के इकट्ठा करना 1 घंटा की तकरीर नहीं, बरसों के मुताले का खुलासा है। अब यकीन करें अब तो वो जमाना भी नहीं रहा जो मैं किताबों का नाम जब बताइए 1303 हिजरी की यानी 100 से साल ज्यादा से लाहौर की छवि कौन जाएगा बेवकूफ ढूंढने? ये पागल जैनुलाब्दीन का काम है जी। ढूंढ के हासिल भी किया, मुताला भी किया, पढ़ा भी और आपको सुना रहा। और इससे अभी पुरानी किताब है, आएगी तकरीर के दौरान और बहुत सुना। मैं 1-2 किताब पढ़ के आया हूँ। 20,000 तो मेरी ही लाइब्रेरी में अपनी जाती किताब है। जब कोई दिल चाहे जाके मेरे घर में यही रहूँ देखा। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी किसी की चोरी का नहीं है, किसी का नाजायज नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे मजहब से वाबस्ता हूँ का सब जायज ही नहीं। और बेजा किसी पर एतराज नहीं हो हमारे मजहब में और गलत किसी पर इत्तेहाम नहीं लगे। हमको दुनिया चाहे काफिर कहे। अच्छा तो आप जानते हैं अबू तालिब को जमाना काफिर कहता, आपको नहीं कहता? पढ़ लीजिए जाके पाकिस्तान के सारे अखबार। अरे वाह 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 वाह। साहबा ने तो सारी दुनिया से फतवा तलब कर लिया है शिया काफिर है। और मैंने अपनी आंखों से देखा, 1-2 नहीं, सारे बोर्ड, सारी दीवारें, सारे मस्जिदों के दरवाजे चलती हुई बसों पर ट्रकों पर लिखा 3 जुमले शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर। नहीं गौर किया, ईमान अबू तालिब साबित करता है जो अली को मौला माने वो जब जमाना कुफ्र के फतवे से वो फर्द नहीं बचा जो अली को मौला माने, तो जो अली को पैदा कर दे हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम अली को मौला मानते हैं तो हम काफिर हैं। आपने मेरी जबान से 3 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, आपने सुना मेरी जबान से किसी साहबी रसूल को मैंने कोई लफ्ज नामुनासिब कहा, गाली दी, तौहीन के जुमले कहे नहीं न कहे, फिर मैं काफिर हूँ। क्यों? अली को मौला मानता नहीं तवज्जो फरमाए। तो जब कहने वाला कुफ्र के फतवे से नहीं बचा तो पैदा होने वाला करने वाला जिसका अली बेटे ही हो, जिसके अली बेटे हो तो लो तुम नबी कहते हो हुब्बु अली ईमान, अली की मोहब्बत ईमान की दलील। तो अली को जो दोस्त रखे वो मोमिन। जवाद भाई सुनिए, हमारे नवे इमाम के अलकाब और खिताब में से खिताब जवाद है नहीं है। सुनिए क्या कहना चाह रहा था, सारे अहले इल्म से यह खिताब है क्या जो मैंने अभी पढ़ा कि नबी कहते हैं कि हुब्बु अली ईमानुन, अली की मोहब्बत ईमान की पहचान है, निशानी है, दलील है। अली की मोहब्बत तो आप मान सकते हैं, दुनिया का कोई गया गुजरा भी बाप ऐसा होगा जो अपने बेटे से मोहब्बत न करे। अरे नूह जब अपने नाफरमान बेटे के लिए दुआ कर सकते हैं, अबू तालिब के तो अली फरमाबरदार बेटे हैं, मोहब्बत फितरी तौर पर। तो जब अली की मोहब्बत ही ईमान की दलील, सलमान मोमिन बाद में बढ़ेंगे अबू तालिब पर। एक बुलंद आवाज से दरूद पढ़ो। पढ़ने से कोई शाकी हो तो मुझे माफ कर देगा, बेशक ये रोने के ज़माने हैं, मगर हक़ाइक़ व मारिफ किताबों के हवाले से गुफ्तगू। रोना तो जब तसव्वुर हुसैन का कर ले रोना है। तो मोहब्बत की बहस क्यों लाया था कि दिल चाहता है कि करबला के मैदान में भी एक हबीब को लाऊं, ऐसा हबीब जो कलम इमाम से फकीह का खिताब मेरा हुसैन गरीब इला रजुल फकीह हबीब इब्न मदाही जुमला सुनने के काबिल है। अभी जाने गिरामी रोने के लिए, वाह वाह के लिए नहीं कि जब फौज पर फौज यजीद की करबला के मैदान में आने लगी ऐसी कि घोड़ों की टापों से जमीन करबला में तो शहजादी ज़ैनब ने भाई आके पूछा, भैया ये फौजें बराबर चली आ रही है, क्या आपके चाहने वाले इमाम हुसैन ने कहा आपको भी मालूम है मेरे भी चाहने वाले हैं, मगर खुदा जाने किन मुसीबतों में मुब्तला। आप सुने अल्लामा सवई ताहिर हमारी जो लिखी हुई किताब नूरुल अफ़सार नाम है उसका, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कूफा में एक ऐसा कैदखाना जा था जो
زیر زمین بنایا گیا تھا. جب مختار فاتح ہوئے ہیں, قبضہ کوفے پر کیا ہے, تو کسی نے ان کو خبر دی کہ ابن زیاد کے دور میں کربلا کے واقعے سے پہلے ایک ایسا قید خانہ تھا جس کا کوئی جاننے والا نہیں. جو قیدی پکڑا جاتا تھا عشق حسین اور محبت علی میں اس کی آنکھوں کو پٹی مار کے اس قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا. اے مختار اللہ جانے وہ بیچارے اس میں ہے یا ان کو نکال کے قید کر دیا گیا. مختار نے جاننے والوں سے اس کا پتہ پوچھا تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی. دروازہ کھول کے جب تک کھانے کا پتہ ملا اور پہنچے ہیں تو 1000 انسانوں کی صرف ہڈیاں, 1000 انسانوں کے پیکر صرف وہاں زمین پر کھانے کے کھانے میں پڑے تھے. اور آپ سنتے پھر اسی کتاب کی بات کرتا ہوں, لکھا جب مثلا ایک قیدی لایا گیا تو ایسا اندھیرا پٹی وزی ڈال دیا گیا. اب وہ پہنچا تو کوئی نہیں جانتا کہ کون آیا کون گیا, کیسے پتہ. جب یہ سانس سے قریب کے پہنچ قیدی نے محسوس کیا کہ میرے پاس کوئی اور نہیں, تو کہا کون, وہ بتایا کس جرم میں تم یہاں بھیجا ہے. کہا کہ عشق اہل بیت, محبت اہل بیت. یہ بھائی تم بتاؤ کیسے یہاں آئے ہو. بھائی ہمارا بھی یہی قصور ہے کہ ہم محبت اہل بیت ہیں. آپ کو احساس ہوا اب حبیب بن مداحی کی کہ جب یہ خط پہنچا تو حبیب نے بھی اپنے کو امام حسین کی خدمت میں پہنچانا چاہا. تو آپ کتنے دشوار راستے تھے. زینب نے پوچھا تھا نا بھیا آپ کے چاہنے والے نے, کہا بہن ہیں تو مگر پتہ نہیں کس مصیبت میں ہے. تو جس پر اس دور میں شک ہوا کہ یہ حسین کی مدد کے لیے جانا, آنکھوں کو پٹی باندھی گئی, گرفتار کیا گیا اور ڈال دیا گیا اس قید خانے میں. مختار فاتح تھا. اب ہائے ہائے کرتے رہ گئے مختار کہ ہائے وہ موقع نہ نصیب ہو گیا. علی کے اتنے چاہنے والے چھوڑ دیے اور دنیا سے گزر گئے. ان کا لاش اور جسم بھی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. یہ ہڈیوں کے ڈھیر دکھائی دے رہے ہیں. بس ماتمداران حسین حبیب نے ایک حکمت عملی سے کام لیا. غلام سے کہا لو یہ گھوڑا لے کر بیرون شہر چلو, میں ضروری چیزوں کی خریداری کرتے ہوئے ادھر ادھر سے. یہ طریقہ تھا کیسے دشمنوں کی نظر سے نکل کر بچ کر چلے جانا. ماتمداران حسین حور کے حبیب کی کچھ خریداری سامانوں کی خریداری میں کوئی دیر لگی تو حبیب کا غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے, گھوڑے گھبرانے کی بات نہیں ہے, اگر آقا میرے حبیب میرے مظاہر نہ آئے تو میں تجھ پر سوار ہو کر اپنے آقا حسین کے گھوڑے سے لے کر جاؤں گا. یہ حبیب قریب پہنچ چکے تھے. فوج ایسے ہی غلام کرا تھا گھوڑے سے. حبیب نے بھی آواز سنی, غلام کو محبت کی نظر سے دیکھا, ادب و احترام کے ساتھ اس سے کہا اے بھائی میں نے تجھے عشق حسین اور عشق اہل بیت کے صدقے میں آزاد کیا اور تجھے اختیار ہے جہاں چاہے وہ چلا جائے. میں تو اب چلا. بس ماتمداران حسین جملے سنیے گا. کیسے حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے, غلام عرض کرتا ہے آقا اب تو میں آزاد ہو گیا. جب میں غلام ہو کے حسین کی مدد کی آرزو کرتا تھا تو آپ تو آزاد کر دیے. میرے اوپر اتنا اور کرم کیجئے کہ اپنے گھوڑے کی پشت پر بطور ردیف مجھے بھی بنا بیٹھا لیجئے. ماتمداران حسین روایت کا حصہ چھوڑا کہیں دیر نہ ہو جائے. ادھر امام حسین نے اپنے اصحاب میں کچھ نیزے اور کچھ تیر کچھ تلواریں تقسیم کی. ایک نیزہ بچ گیا, خیمے کے دروازے پر اسے نصب کر دیا. ارے کسی چاہنے والے نے کہا مولا یہ نیزہ بھی فلاں کو دے دیجئے. کہا نہیں نہیں ابھی اس کا لینے والا آ رہا ہے. ماتمداران حسین تھوڑی دیر گزری تھی کہ اللہ اکبر کی آواز بنا. ارے آنے والے نے عرض خبر دی, مولا نے عرض کیا حبیب ابن مداحی کوفہ سے آ گئے ہیں. ادھر حبیب گھوڑے سے کودے, حسین کے خیمے کے قریب پہنچے, قدموں کا بوسہ لیا, ہاتھوں کو ہوا سے لگایا. ادھر فضا نے یہ منظر دیکھا, شہزادی کے خیمے میں آئے. اے شہزادی ارے کوئی کوفہ سے آپ کے بھیا کا مددگار آیا ہے. ماتمداران حسین زینب نے کہا اے فضا ذرا جا کے بڑھ کے پوچھو کہ کون آیا ہے, کیا نام ہے. فضا آئی, معلوم کیا, فوراً پھر واپس پلٹی, کہا حبیب ابن مداحی رجل فقیر کوفہ سے تشریف لائے ہیں. زینب کو یاد آ گیا میرے بھیا کا بچپن کا دوست. کہے فضا ارے جا کر میرا سلام کہہ دو. ماتمداران حسین فضا درے خیمہ حسین پر آئے. اے حبیب ارے تمہیں مبارک ہو کہ فاطمہ کی دائی
علی کی بیٹی حسین کی بہن میری شہزادی زینب آپ کو سلام کر رہی ہے. ادھر لفظ زینب اور لفظ سلام فضہ کی زبان سے جاری. ارے حبیب نے امامت سر سے اتارا. آئے ارے اتنی مصیبتوں میں آ گئے کہ شہزادیاں ہم غلاموں کو سلام کہے. میں آواز دیتا ہوں اے حبیب. ارے تم سلام کی بات سن کے گھبرا گئے. کاش دیکھتے کہ تمہارا شہر کوفہ اور زینب برہنہ سر پہ کجاوا اونٹوں پر منادی آگے آگے ندا دے رہا تھا. اے کوفہ والو آؤ تماشا دیکھو. نبی کی نواسیاں علی کی بیٹیاں برہنہ سر لائی جا رہی ہیں. انا للہ و انا پالنے والے محمد کا واسطہ. بیمار ان کے شفا کو دے دو. جو پریشان کی پریشانی کو دور کر. جو بے روزگار ان کو روزگار. کاروبار میں ترقی تحصیل علم میں ہے ان کو کامیابی بھی عطا فرمائے. علم کی دولت سے ہمارے بچوں کو عاشقان اہل بیت میں سے شامل کر. اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام کا درجہ ظہور فرمائے. بانیان مجالس کے حاصلوں کو بلندی عطا فرمائے. نیک اور صالح بلند کردار علماء کہتے ہیں قدر اور منزلت کرنے کی ان کے احترام و عزت کی لوگوں کے دلوں میں توفیق. ہماری مجلسوں کے احترام کو برقرار رکھ.